Swami Vivekananda says, never say no, never say I cannot, for you are infinite. All the power is within you. You can do anything. With such an inspirational thought, a very good morning to all my dear students and welcome in the class of Accounts Standard 11th. We are continuing with chapter number 4, Journal. Today we will proceed with question number 9. Before we start this practical sum, this sum is based on trade discount, cash discount. Let us first understand what are these types of discount. Okay, so trade discount and cash discount. The first is trade discount. At the time of sale, manufacturer or wholesaler allows certain discount to retailers from selling price, which is known as trade discount. Now, whensoever this retailer purchases from manufacturer or say from wholesaler, they both allow some discount to this retailer. This is known as trade discount. In short, it is known as TD. Trade discount is deducted but not recorded in the books of accounts. ये क्या है और कैसे काम करेगा? Let us go through with the example. But students, this line you are supposed to learn. ये आगे भी आपको काम आएगा. Trade discount is deducted but not recorded in the books of accounts. For example, goods of 50,000 purchased from Mr. X at 10% TD. 50,000 के goods हमने क्या किए हैं? Mr. X से purchase किए हैं और कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट. How is the working? Total price is of 50,000 rupees. 10% अपन को क्या करना है? TD माइनस करना है. Now 10% of 50,000 comes to 5,000. 50,000 का 10% कैसे करना है? On your calculators type 50,000 multiply 10 and percentage key will come to 5,000 minus equals to will come to 45,000. This is the net amount will be recorded in the books of accounts, but this 5,000 is not to be recorded. So 50,000 की आपने गुड्स खरीदे, आपको 10% टीडी मिला. आपको फाइनली गुड्स कितने में मिल रहे हैं? 45,000 में. तो आप अपने बुक्स में कितने का परचेसिंग दिखाएंगे? आप अपने बुक्स में 45,000 का परचेस दिखाएंगे. टीडी इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड. स्टूडेंट्स, मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट. ऐसा नहीं मानना कि रिकॉर्ड नहीं करना है तो माइनस भी नहीं करेंगे. नहीं, डिडक्ट होगा पर रिकॉर्ड नहीं होगा. मूविंग फर्दर, cash discount. To receive back quick collection of credit sales from customers, certain fixed percentages are allowed as incentive discount. This discount is known as cash discount. Now, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उन्हें क्विक कलेक्शन की जरूरत होती है. वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो भी कस्टमर है वो बहुत देर तक उन्हें पैसे ना लौटाए. इसके लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग कैश डिस्काउंट अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं. वो भी कैश डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट दे देते हैं. जैसे ही वो कैश पेमेंट उनका होता है, सामने वाला जो रिटेलर है वो उनको डिस्काउंट अवेल करवा के माइनस करके डिडक्ट करके वो प्रोडक्ट्स को बेच देता है. नाउ इससे फायदा दोनों को होता है. कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल जाता है और जो बिजनेसमैन होता है उसे अपने कलेक्शंस में भी टाइम नहीं लगता. ऑन द स्पॉट उसे पैसा मिल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट कैश डिस्काउंट इज नोन एज सीडी.
Next, this is one kind of factor of attraction to pay due within prescribed time or before that. Minded students, cash discount is only and only available on cash type of transaction. अगर पेमेंट ऑन द स्पॉट हो रहा होगा तो ही कैश डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज नॉट. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाता नहीं है. It is expense for the business. It is calculated and even recorded in the books of accounts. While TD is calculated but not recorded. कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैलकुलेट भी होता है और रिकॉर्ड भी करना होता है, बिकॉज इट इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, goods of 12,000 purchased from Mr. X at 10% TD and 5% CD. हमने क्या किया है? 12,000 के गुड्स परचेज किए हैं किससे? मिस्टर X से, और 10% TD भी मिला है और 5% CD भी मिला है. How these both are to be calculated? First of all, the total price, that is 12,000 rupees, माइनस क्या करेंगे? पहले TD माइनस करेंगे. 10% TD कैलकुलेट कितना होता है? 1200. क्या ये 1200 आप बुक्स में दिखाओगे? नो, यू आर नॉट सपोज टू शो दिस 1200. ओनली इट इज टू बी कैलकुलेटेड. whenever you will minus this 12,000 from this 12,000, when you will deduct 1200, you will get 10,800. this is your purchase amount. ये आप परचेज अकाउंट में लिखेंगे. 12,000 के गुड्स आपको कितने में मिले हैं? 10,800 में. माइनस क्या करना है? 5%. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन. 5% किसका कैलकुलेट करेंगे? 10,800 multiply 5%, then it will comes to 540. This is your CD, cash discount. ये कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड भी होगा और कैलकुलेट भी होगा. टोटल comes to 10,260 rupees. amount is payable. Fine. So this was the calculation of cash discount. Now students, coming on to the next question, that is question number 9, given on your page number 103. Write journal entry for the following transactions in the books of Ramesh. So the heading will be journal entries in the books of Ramesh. Okay, now the date which is given, you are supposed to write that 2014 April 1st. Now cash purchase rupees 15,000 and cash sales rupees 14,000. हमने कैश परचेज किए हैं और कैश सेल्स किए हैं, तो हम इसकी दो एंट्रीज पास करेंगे. फर्स्ट परचेज की पास कर रहे हैं. परचेज में क्या होता है? गुड्स आते हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिट. गुड्स कम्स इन टू, क्या गया? गुड्स आए तो टू कैश अकाउंट. How much? 15,000. Okay. Now the next one is cash sales. अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो पैसा आता है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सो कैश को हम डेबिट करेंगे एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, एंड सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट. Amount is 14,000 rupees. Okay, so for transaction dated 1, there will be two entries, एक तो कैश परचेज की और एक कैश सेल्स की. Now the next date is date 5. What is given? A personal goods of rupees 10,000 brought to business.
बिजनेस के अंदर हम अपना पर्सनल गुड्स लेकर आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर आ रहा है, बिजनेस का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस। गुड्स अकाउंट नहीं लिखने की जगह पे क्या यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। डेबिट to what is increased, your capital has increased in the business, so capital account कितने का हम स्टॉक लेकर आ रहे हैं पर्सनल, that is of 10,000 rupees, so in both the columns 10,000 rupees you will write. Now the next transaction is transaction dated 7. What it states, goods of rupees 12,000 purchased from Harsh. हर्ष से आपने 12,000 रुपीस के गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस। तो गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैसे पता चला, बिकॉज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज मेंशन्ड, सो हर्ष टू हर्ष अकाउंट of what amount you have purchased the goods, the amount is of rupees 12,000. Okay, now moving further, transaction date 10. Now this transaction is important, please pay attention. Out of goods purchased due to defective goods, half goods returned to Harsh. Defective goods होने की वजह से हमने half goods हर्ष को वापस कर दिए हैं। हाफ किसके, so your 10th transaction is related with 7th transaction, half 12,000 का होगा। ओके, ट्रांजैक्शन 10 में नहीं बताया है कि कितने गुड्स डायरेक्टली हम वापस कर रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि जितने परचेज किए थे उसका हाफ हम रिटर्न कर रहे हैं हर्ष को। परचेज किया था हर्ष से, अब हर्ष को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज किए हुए गुड्स जब वापस हम देते हैं, दैट विल बी अगेन योर परचेज रिटर्न। गुड्स गोज आउट इन परचेज रिटर्न। ये हमारा यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ था, हमारा क्रेडिटर क्रिएट हुआ था। हमें हर्ष को कितना देना था, 12,000 रुपीस देना था। अब हम हाफ ऑफ द गुड्स हर्ष को वापस कर दे रहे हैं, तो हम हर्ष के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, बिकॉज वन वे इज कि हर्ष इज द रिसीवर ऑफ व्हाट, ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। और सेकेंड में हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि हर्ष को हमें 12,000 पे करना था, अब हम हाफ ऑफ द गुड्स उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। सो हर्ष के अकाउंट को डेबिट किया। टू व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट। कौन से गुड्स बाहर जा रहे हैं, जो गुड्स अपन ने परचेज किए थे। सो परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना परचेज रिटर्न है, हाफ ऑफ परचेज, सो अमाउंट कम्स टू 6,000, 12,000 का 50%, दैट इज 6,000 rupees. Now moving further on to the 12th transaction, what it says, goods of rupees 10,000 purchased from Ramila and half amount paid by check. हमने क्या किया है, रमीला से परचेज किया है और हाफ ऑफ द अमाउंट वी हैव पेड थ्रू चेक। परचेज किया है, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, सो परचेज अकाउंट डेबिट
टू, बैंक से अपन ने पेमेंट किया है, चेक वर्ड यूज किया है, इसीलिए टू बैंक, बैंक विल बिकम द गिवर. हाफ payment has been made to bank, but half is your credit transaction, Ramila's account. कितने के परचेसिंग किए हैं अपन ने? ऑफ 10,000 रुपीज. तो परचेज में पूरा 10,000, बैंक के कॉलम में 5 एंड रमीला के कॉलम में भी 5,000. नाउ this type of transaction we have already studied. This is your half credit and half cash transaction. परचेज हमने 10,000 की किए हैं, बैंक में से 50% आपने पेमेंट कर दिया है और बाकी का जो 50% है this is your credit transaction. So रमीला के अकाउंट में कितना आया? 5,000. Moving further, page 15. Goods purchased from Ramila sold to Meeta after adding 30% profit at 10% trade discount. Now students, as taught you in the theory, trade discount is calculated but not recorded in books of accounts. Please make sure of this trade discount. Trade discount is calculated but not recorded in books of accounts. Cash discount is calculated and even recorded in books of accounts. Trade discount हम यहाँ पे माइनस करेंगे कि नहीं, वो अभी ध्यान देंगे. 15th ट्रांजेक्शन आई एम रीडिंग इट अगेन. पर अगर जब होगा तो भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, पर जर्नल एंट्री में यहाँ पे शो करेंगे नहीं. लेट अस रीड इट वंस अगेन. Goods purchased from Ramila sold to Meeta at 30% profit and at 10% discount. हमने क्या किया है? रमीला को गुड्स बेचे, रमीला से जो खरीदे हैं वो मीता को अपन बेच रहे हैं. कितने में बेच रहे हैं? 30% प्रॉफिट पे. नाउ प्लीज स्टूडेंट्स पे अटेंशन ऑन दी वर्किंग. हमने परचेज किया था, परचेज है हमारा 10,000 का, उसमें अपन क्या ऐड कर रहे हैं? प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं. कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं? दैट इज 30%. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप अपने कैलकुलेटर्स पे? 10,000 मल्टीप्लाई 30 एंड परसेंटेज का की आप प्रेस करेंगे. द अमाउंट विल बी 3,000 रुपीज. ऐड करना है 10,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट विल कम टू 13,000. अब इस 13,000 में से क्या डिडक्ट करना है अपन को? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफ हाउ मच? ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. नाउ वी विल रिपीट द सेम एक्सरसाइज. 13,000 का क्या करेंगे अभी आप? 13,000 मल्टीप्लाई 10%, देन इट विल कम टू 1,300. अब क्या करना है आपको? 13,000 में से माइनस करना है 1,300, देन टोटल कम्स टू 11,700. ये आपने क्या किया है? सेल किया है. दिस विल बिकम योर सेलिंग प्राइस. अब अपन क्या रीड करेंगे ट्रांजैक्शन में कि रमीला से जो अपन ने 10,000 में परचेज किया था वो मीता को अपन कितने में बेच रहे हैं? 11,700 में सेल्स कर रहे हैं हम मीता को. जर्नल एंट्री क्या होगी? मीता's account debit to sales account. How much? 11,700. Fine students. Moving further, Meeta returned goods of ₹1,000. अब हमने मीता को बेचे हैं गुड्स 11,700 के.
मीता हमें डे 18 को कुछ गुड्स रिटर्न कर रही है, कितने के? 1000 रुपीस के। सो प्लीज टेक केयर, हमने मीता को सेल्स किया था, मीता अब हमें रिटर्न कर रही है। कौन से रिटर्न आ रहे हैं गुड्स? जो गुड्स हमने सेल किए हैं, सेल रिटर्न हो रहे हैं वापस से। तो जब सेल्स रिटर्न होता है, गुड्स अगेन कम बैक इनटू द बिजनेस। सो एज पर द रूल हम यहां पर इसको डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न account. Your sales return account is, students, which type of account? ये हमारा real है because it is related to goods. Goods comes into the business. Sales return account debit to कौन हमें वापस भेज रहा है? मीता is the giver to मीता's account. 1000 into the columns. Okay, moving further into the next transaction, that is date 20, goods of rupees 20,000 sold to Kalpana at 10% TD and 5% CD. Now let us check first the calculation part. हम क्या कर रहे हैं? goods कितने के बेच रहे हैं? 20,000 के 10% TD है, 5% CD है। 20,000 माइनस हमें क्या करना है? 10% का TD। Again what you will do? On your calculators you will type 20,000 into 10%. Then it will come to 2,000. 20,000 में से 2,000 माइनस करना है, it will result to 18,000. Now dear students, please make note of one thing. अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो ही हम कैश डिस्काउंट उसको अवेल करेंगे, अदरवाइज सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होगा। नाउ इन योर डेट 20th, यहां पे आपको क्या बोला हुआ है कि वी आर सेलिंग गुड्स टू कल्पना एंड इट्स नॉट एट ऑल मेंशन्ड ओवर हियर कि वो कैश से हमने बेचा है कि बैंक के थ्रू कल्पना ने हमें चेक दिया है। नथिंग देयर इज, इंस्टेड क्या दिया हुआ है? कल्पना नाम दिया हुआ है। कल्पना नाम दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में। इफ द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इज गिवन देन इट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश डिस्काउंट यहां पर ना तो हम कैलकुलेट करेंगे और ना ही हम रिकॉर्ड करेंगे। सो 20,000 में से माइनस 2,000, दिस कम्स टू 18,000। कैश डिस्काउंट यहां पर हम टच नहीं करेंगे, प्लीज स्टूडेंट्स माइंडेड। 10 जो 5% है कैश डिस्काउंट, that is not to be shown in our working as well and we will not write in our journal entry as well because this is your purely credit transaction. आप कल्पना को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं गुड्स। कैश वर्ड यूज किया हुआ नहीं है इन ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट योर कैश ट्रांजैक्शन। एज इट इज नॉट योर कैश ट्रांजैक्शन, आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, so we are selling goods to Kalpana. Goods are going out from the business. Who is becoming the receiver? Kalpana is becoming the receiver. So अभी तक तो आपको एंट्रीज ये नॉर्मल सिंपल जो एंट्रीज है वो आ गई होंगी। It will be Kalpana's account debit to sales account. अमाउंट कितना रिकॉर्ड करेंगे हम? 18,000। ओके, मूविंग फर्दर इनटू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 104 एज पर न्यू टेक्स्ट बुक, डेट 22, गुड्स ऑफ 2,000 destroyed by fire and insurance company admitted claim of 1,000 rupees. Again this is the new concept for you people. हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? अपना लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें या यहाँ पे
गुड्स से रिलेटेड इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस इसी के लिए करवाया जाता है टू मीट दी अनसर्टेनिटीज, टू मीट दी एक्सीडेंट्स। फायर हो जाने की वजह से हमारे गुड्स जल गए हैं, सो हमने इंश्योरेंस कितने का करवाया हुआ था, गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रॉयड। हमारे पूरे गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हुए हैं, 2000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। सामने से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया, 1000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दे दिया है। नुकसान टोटल कितने का था मेरा, 2000 का, उसमें से 1000 किसने दिया मुझे, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दिया है, बिकॉज मैंने वहां से इंश्योरेंस अपने गुड्स का करवा के रखा था। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मेरा लॉस कितने का है, नाउ माय लॉस इज ओनली ऑफ ₹1000। As per the rule of nominal account, all losses are to be debited. हम लॉस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। If you want, I'll show you 2000 के टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, 2000 में से 1000 क्या हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया है। अब कितना पैसा बचा, 1000। ये 1000 मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मुझे ये 1000 रुपीज मिलेंगे नहीं, सो लॉस ड्यू टू फायर में कितना आया, 1000 रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे पैसा देंगे फ्यूचर में जाके, सो वो मेरे डेटर्स, यहां पे मैं लिखूंगा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट। इसमें भी कितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में 1000 रुपीज। 2, ये 2 अब आपको आ जाना चाहिए when goods are going out other than cash or sales. Come on, say now. Will be treated as your purchase. Very good. To purchase account. Now, total goods आपके कितने के डिस्ट्रॉय हुए थे, 2000 के. So you will write 2000. Insurance company claim हमें फ्यूचर में पैसा देने वाली है. This will become our asset. फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा. लॉस हमारा नुकसान, that is as per the nominal account हम इसको डेबिट करेंगे. और goods going out other than cash or sales are treated as your purchase. Fine students, so this was your classification showing loss and company's claim. Now moving further on to 25th day transaction, what it states, goods of 500 ruined and drained, 200 are realized by selling it. Now please students make note of this transaction. 500 के आपके goods क्या हो गए हैं, ruin हो गए हैं. ruin हो गए यानी destroy हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं. टोटल आपके goods 500 के बर्बाद हुए हैं, पर जब मैंने इनको बेचा तो मुझे कितना पैसा रियलाइज हुआ, 200 रुपीज मुझे रियलाइज हुआ है उन डिस्ट्रॉयड गुड्स में से. 500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं. आउट ऑफ दैट गुड्स ऑफ 200 मुझे स्क्रैप में से मिले हैं. अब टोटल लॉस मेरा कितना हुआ, दैट इज ऑफ 300 रुपीज. सो लॉस ड्यू टू रेन, अकाउंट डेबिट. कितना लॉस हुआ, 500 का, नो. 500 में से जब आपने उन गुड्स को बेचा, डिस्ट्रॉयड गुड्स को जब आप बेच रहे हैं, तो उसमें से आपने 200 को रियलाइज कर लिया है. उतना पैसा आपको 200 रुपए वापस मिल गया है. 500 में से 200 गए, दैट कम्स टू 300. आपका नुकसान कितने का है, 300 का. 200 आपको उस डिस्ट्रॉयड गुड्स में से रियलाइज हुए हैं. कैश comes into the business, so cash account डेबिट. कितना कैश आया, 200. 2 इंपॉर्टेंट,
I have taught you in transaction 22nd. क्या होगा 2 में? It is to purchase account. Goods going out other than sales are treated as purchase. Okay, students. So moving further into the next transaction, date 27. Goods of 300 received as free samples. 27 में क्या एंट्री है? हमको 300 रुपीस के गुड्स फ्री में मिले हैं. Now, goods are coming into the business, but there is no economic transaction being conducted. 300 रुपए के गुड्स हमारे बिजनेस में आए हैं. क्या हमने 300 रुपए सामने वाले को दिए? नो, बिकॉज दे वर सेंट फॉर फ्री सैंपल्स. फ्री में अगर ये गुड्स आपके बिजनेस के अंदर आ भी रहे हैं तो भी हम यहाँ पर इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन प्ले कर रहा नहीं है. सो योर डेट 27th विल बी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नो एंट्री. फाइन. यहां पे कोई भी आपका एंट्री होगा नहीं, बिकॉज ना तो आपके पास पैसा आ रहा है और ना ही आपके बिजनेस में से पैसा जा रहा है. आपको रिसीव हुए हैं. द वर्ड फ्री सैंपल्स रिसीव. रिसीव वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है. आप फ्री में रिसीव कर रहे हैं, इसके लिए आप यहां पे क्या करेंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दिखाएंगे. आप एज अ बिजनेस क्या करेंगे? फ्री में सैंपल्स किसी को देंगे अगर, तो एंट्री हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे. एज एंड व्हेन जब ये ट्रांजैक्शन आएगा आई विल टीच यू, बट टिल देन प्लीज कीप इन योर माइंड यहां पर वर्ड यूज हुआ है रिसीव. फ्री में हमको रिसीव हुए हैं. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नो एंट्री. मूविंग फर्दर, नाउ डेट 29. What it says, goods of rupees 250 was received as free sample, sold for 400. Now, there is difference between 27th transaction and 29th transaction. आपको free samples तक वो सेम दिखाई देगा. 250 के goods free में आपको रिसीव हुए हैं. वही सेम 250 के गुड्स आप क्या कर रहे हैं? मार्केट में उन्हें बेच रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग 400 ऑन दैट. 250 वाले गुड्स फ्री में आपको रिसीव हुए हैं. वही सेम गुड्स आप क्या कर रहे हैं? मार्केट में बेच रहे हैं. यू आर गेटिंग 400 फॉर दैट गुड्स. हम यहां पर क्या ट्रीट करेंगे कि हमने उन गुड्स को क्या किया है? बेचा है. हम रिसीव कर रहे हैं कैश 400. So this is your cash sort of transaction. Cash comes into the business, so cash account debit to sales account. Amount 400. Okay, so यहाँ पे डे 29 में आप नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यूज नहीं करेंगे. अगर फ्री सैंपल्स तक ही ये ट्रांजैक्शन होता तो वापस से नॉन इकोनॉमिक होता, पर वही सेम फ्री सैंपल्स वाले अगर आप बेच रहे हैं, यू आर अर्निंग समथिंग, इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे. मूविंग फर्दर, अ मोबाइल ऑफ 1500 परचेज्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ 1000. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट डेट इज 30. प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. 1500 रुपीस का मोबाइल बिजनेस के अंदर आ रहा है, पर उसके सामने गुड्स कितने के बाहर जा रहे हैं? गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ ओनली ₹1000. व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस? असेट इज कमिंग, मोबाइल इज कमिंग इनटू द बिजनेस, बट गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ ओनली ₹1000. सो जब हम यहां पर अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. 1500 रिकॉर्ड करूं, 1000 रिकॉर्ड करूं? ओके, ऐसा नहीं. 1500 में से 1000, 500 रिकॉर्ड करूं, दोनों को माइनस करके, दोनों को ऐड करके 2500. नो, यू आर नॉट सपोज टू गेट इट कंफ्यूज्ड. यू आर अ बिजनेस ओनर. आप बिजनेस के मालिक हैं. यू आर बिजनेसमैन. आपका खुद का बिजनेस है. आपके बिजनेस में से गुड्स कितने के जा रहे हैं? यू आर ओनली कंसर्न्ड विद दैट थिंग.
आपके बिजनेस में से कितने के गुड्स जा रहे हैं? गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ ₹1000 ओनली। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उतना ही रिकॉर्डिंग करेंगे। व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस? गुड्स जा रहे हैं, बस सामने आ क्या रहा है आपके पास? मोबाइल आ रहा है। सो दिस इज योर असेट। आपको असेट का नाम पता है तो आप लिखेंगे मोबाइल अकाउंट डेबिट। व्हाई डेबिट? बिकॉज मोबाइल इज कमिंग इनटू द बिजनेस। 2, whensoever goods are going out other than cash or sales are to be treated as your purchase। तो यहां पे भी अपन क्या करेंगे? to purchase account। as I told you, amount कितना? 1500? no। दोनों का डिफरेंस 500? no। जितने की गुड्स जा रहे हैं उतना। कितने की गुड्स जा रहे हैं? गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ 1000 रुपीज। एट द एंड स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? टोटल करना होगा। व्हाटएवर अमाउंट कम्स आप यहां पे टोटल लिखेंगे। फर्स्ट डेट से लेके 30 डेट तक दोनों कॉलम्स को आपको टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दिस इज ड्यूअल अकाउंटिंग इफेक्ट्स। जितने से आप डेबिट कर रहे हैं उतने से आप क्रेडिट कर ही रहे हैं। Do only one set of total, write it down over here and copy paste over another side। क्रेडिट का कर रहे हैं तो डेबिट में पेस्ट कर देंगे, डेबिट का टोटल कर रहे हैं तो क्रेडिट में लिख देंगे। दोनों का टोटल कैसा आएगा? सेम आएगा। एंड रेस्ट ऑफ द सम्स आल्सो यू आर सपोज्ड टू डू द टोटलिंग्स। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइन स्टूडेंट्स। And your today's task is page number 103, question number 9, page number 74, illustration number 8. These are the pages of new textbook. Do your homework in your accounts fair book. Thank you, students.